Hello all my dear students, a wonderful good morning to all of you. I am Ajay Prakash Tiwari, your biology teacher, and I am present here with a new topic of your chapter number 5, that is principle of inheritance and variation, and simply that is linkage and recombination. Up till now, in previous videos, we have discussed about the chromosomal theory of inheritance that was given by Sutton and Boveri, and according to that theory, what chromosomes were the vehicle of heredity, or we can say that chromosomes were controlling the inheritance. So here we will discuss with new topic, that is what? Linkage. It is clear from its name. Linkage, it means that there is something that is linked. कुछ एक ऐसी चीज है जो क्या है, लिंक है या आपस में किसी चीज का जुड़ाव है, एंड दैट लिंक पोर्शन और दैट लिंक थिंग्स आर नोन एज जीन. इट मीन्स दैट here, as you know that according to chromosomal theory of inheritance, genes were present on the chromosome. Genes were present on the chromosome according to Sutton and Boveri. We have discussed in the previous topic, and here all those genes, those are present on the chromosomes, they have certain possibilities. What are those possibilities? First possibility is here that both the genes may be present in a linear manner and the distance between those genes are very less. मान के चलते हैं किसी एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम पर ये दो जीन थे और इनके बीच में केवल इतनी डिस्टेंस थी, तो अगर इनके बीच में डिस्टेंस कम है या एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड हैं या एक दूसरे के बहुत नज़दीक हैं, दे विल टर्म्ड एज ए लिंक जीन. अगर इनके बीच में इतनी दूरी हो जाए तो दे विल टर्म्ड एज ए नॉन लिंक्ड जीन. सो इफ देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ लिंक्ड जीन ऑन ए क्रोमोसोम, that gene as it is transmitted from their parents to their offspring, and that is known as linkage. It means that linkage is a tendency, or we can say that linkage is a tendency in which genes are tend together inherited from parents to their offspring. यानी लिंकेज एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर लिंक जीन एज इट इज पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में पहुँच जाते हैं. Okay, so now we will discuss here some stats and some definition according to your NCERT as well as some other books also. So what is linkage? According to your NCERT, this is physical association of a gene, physical association of a gene, physical association of a gene on chromosome, physical association of a gene on chromosome. This is definition just strictly based on our NCERT. And what are the modification in this definition? हम इसको अदर भाषा लैंग्वेज में लिख सकते हैं बेटा, टेंडेंसी और alleles of different gene, tendency for alleles of different gene to be passed together, from one generation to another generation, from one generation to another generation is known as linkage. ठीक है बेटा, ऊपर हमने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है, सबसे आसान सी क्या है, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ अ जीन ऑन अ chromosome is known as linkage, or we can say that in other words, tendency for alleles of different gene to pass together from one generation to another generation is known as linkage. What are the terms, what are the conditions those we are talking about here? कहने का मतलब क्या है बेटा कि अगर कोई एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम था
और इसके पास एक जीन ए था, दूसरी जीन यहीं पे थी बी। ठीक है, दूसरी कंडीशन है, एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम ये है, इसके पास एक जीन ए यहाँ है, दूसरी जीन भी यहाँ है। तो ये दो जीन आपको दिख रहे हैं, दोज आर नोन एज और दीज आर नोन एज लिंक्ड जीन, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, नॉन लिंक्ड जीन हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, these two genes will be inherited from their parents to their offspring as it is, यानी जैसे यहाँ पे है ये ऐसे ही चले जाएंगे। यानी यहाँ चूंकि A और B के बीच में बहुत कम डिस्टेंस है, that's why they are known as linked gene, and the linked gene show the phenomena that is known as linkage, यानी लिंक्ड जीन ही लिंकेज को क्या करती हैं, डिनोट करती हैं, यानी जो जैसे थी ये ऐसी ऑफ स्प्रिंग में पहुंच गई। ओके बेटा, तो आपने यहाँ से देख लिया लिंकेज। एंड जीन्स आर नोन एज, एंड जीन्स आर, इसको भी यहाँ से लिख लीजिए, जीन्स आर नोन एज लिंक्ड जीन, जीन्स आर नोन एज व्हाट, लिंक्ड जीन। ठीक है, तो ये तो था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिंकेज का। अब यहाँ से हम देखेंगे कौन कौन से साइंटिस्ट हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, एंड हाउ दे प्रूव दैट देयर इज अ लिंक्ड जीन एंड नॉन लिंक्ड जीन, एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लिंकेज, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ recombination. So we will discuss one by one here all. Okay then students, so we can write here first of all, linkage was, first of all linkage was observed by William Bateson and Punnett in 1905। अब बेटा यहाँ पे जो मैंने 1905 लिखा है, यहाँ पे होता है कंफ्यूजन। क्यों? क्योंकि कुछ बुक्स में लिखा है 1906, कुछ बुक में लिखा हुआ है 1905, एंड इन सर्टेन बुक्स इट इज ऑल्सो रिटन एज अर्लियर इन 1900, यानी 19वीं सदी के आसपास। Yes, dear students, you can see the pictures here of William Bateson as well as Punnett, and then after you can see the picture of Lathyrus odoratus, that is sweet pea। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कहाँ खोजा गया और किसने खोजा दोनों को। कहाँ? इन Lathyrus odoratus, in Lathyrus odoratus, that is also commonly known as sweet pea. So what were the postulate of these two scientists? Those were William Bateson and Punnett. Now let's discuss. So both William Bateson and Punnett, he studied two genes, इन्होंने दो जीन को स्टडी किया। द फर्स्ट वन इज हियर, वन अफेक्टिंग फ्लावर कलर, वन अफेक्टिंग फ्लावर कलर। आप सभी को पता है कैपिटल P वॉज फॉर पर्पल एंड स्मॉल p वॉज फॉर रेड। ठीक है, हियर सेकेंड affecting shape of pollen grains, shape of pollen grains। यहाँ से आपका एक L है लॉन्ग के लिए और फिर स्मॉल L है राउंड के लिए। ठीक है, सो व्हाट वाज द कंक्लूजन? इफ टू alleles P and L comes from same parent, इसका मतलब क्या हुआ? P P L L एंड P P L L, एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव। then they will
enter the same gamete and then they will enter the same gamete. यानी इन्होंने बताया क्या, if two alleles P and L comes from same parent, यानी ये वाली कॉम्बिनेशन है तो इसमें ही होगा क्या, वो दोनों के दोनों क्या करेंगे, सेम गैमीट में इंटर हो जाएंगे एंड ट्रांसमिट टुगेदर called कपलिंग। ये ध्यान देने वाली बात है बेटा। यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, अगर दो एलील थे P और L, वो एक ही पेरेंट से थे, ये वाली सिचुएशन थी, तो वो दोनों के दोनों एक ही गैमीट में इंटर होने के बाद एक साथ ऑफ स्प्रिंग में चले जाएंगे और ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, कपलिंग कहते हैं। दूसरा इसी का जैसे उल्टा होता है, अगर दो अलग अलग पेरेंट्स से आते हैं, ठीक है बेटा, हेटेरोजाइगस कंडीशन हम एक जगह लेके चलते हैं, एक जगह होमोजाइगस कंडीशन लेते चलते हैं, या दो अलग अलग पेरेंट्स से आते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा बेटा, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि वो अलग अलग गैमीट में इंटर करेंगे और उसमें क्या हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा। व्हाट इज द सेकेंड पॉसिबिलिटी, when the same allele comes from different parents। अब डिफरेंट पेरेंट्स में है बेटा तो क्या कॉम्बिनेशन होगा, अगर एक जगह PPLL होता है बेटा, तो ये एक जगह कैपिटल एक जगह स्मॉल PPLL और दूसरी जगह फिर क्या हो जाएगा PPLL। they will enter the different gamete। यानी अगर सिचुएशन ये वाली थी, एक ही क्या थे, पेरेंट के थे दोनों एलील, तो वो एक सेम गैमीट में गए। लेकिन अगर सिचुएशन क्या हो गई, व्हेन द सेम एलील्स कम्स फ्रॉम, यानी कौन से सेम एलील, P and L, व्हेन द सेम एलील्स कम्स फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट, दोज आर PPLL एंड PPLL, यानी यहाँ से कैपिटल P और यानी यहाँ से कैपिटल L ले लिया जाएगा, दे विल एंटर इन डिफरेंट गैमीट्स एंड कॉल्ड रिपल्सन। उसको हम क्या कहते हैं, रिपल्सन कह देते हैं बेटा, ठीक है। तो दो पोस्टुलेट्स जो इनके थे, किसके, आपने देखा प्यूनिट के, और प्यूनिट के साथ साथ बेटसन के। इन्होंने बताया कि अगर दो एलील्स हैं P और L, वो एक ही पेरेंट से हैं, तो एक ही गैमीट में एक साथ जाकर वो आगे ऑफ स्प्रिंग में पहुंच जाएंगे। लेकिन वो दो अलग अलग पेरेंट से आ रहे हैं, तो वो अलग अलग गैमीट्स में जाएंगे और उसको हम रिपल्सन कहेंगे। अगर वो एक साथ थे तो उसको हम क्या कहेंगे, कपलिंग कहेंगे। तो देन स्टूडेंट्स, सो बेटा बेटसन और प्यूनिट बहुत ज़्यादा क्लियर कट में डिफाइन नहीं कर पाए लिंकेज को। सो लेटर ऑन, यहाँ से हम लिख सकते हैं लेटर ऑन मॉर्गन explain the concept of linkage on the basis of his work on Drosophila melanogaster, or we can write fruit fly। ठीक है, स्टार्टिंग में बेटसन और प्यूनिट ने कोशिश की लिंकेज को एक्सप्लेन करने की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। उसके बाद TH मॉर्गन आए, ठीक है, थॉमस हंट मॉर्गन, इन्होंने क्या किया, फ्रूट फ्लाई पे अपना एक्सपेरिमेंट किया, एंड आफ्टर एक्सपेरिमेंट ऑन फ्रूट फ्लाई ही कंक्लूड द प्रोसेस ऑफ लिंकेज और ही एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ लिंकेज। दैट्स वाई मॉर्गन इज ऑल्सो नोन एज फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स। यानी मॉर्गन को हम क्या कहते हैं, फ्लाई मैन भी कहते हैं, एंड फ्लाई फ्रूट फ्लाई और
that is known as Drosophila melanogaster. ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर और फ्रूट फ्लाई को हम क्या कहते हैं, क्वीन फ्लाई भी कहते हैं, ठीक है। ये रानी होती है जेनेटिक्स की, क्वीन ऑफ जेनेटिक्स, दिस इज द क्वीन ऑफ जेनेटिक्स एंड वो मॉर्गन इज नोन एज फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स। तो हम बात करेंगे यहाँ पे अब मॉर्गन ने बताया क्या था, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे पोस्टुलेट ऑफ मॉर्गन, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ मॉर्गन, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज, ठीक है बेटा। यानी जो मॉर्गन ने वर्क किया किस पे, फ्रूट फ्लाई पे, उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला। सो हियर पोस्टुलेट ऑफ मॉर्गन, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। सो लेट्स स्टडी वन बाय वन। इन्होंने क्या बताया, in a chromosome genes are present in linear order, यानी इन्होंने बताया कि जो क्रोमोसोम है बेटा, उस पे जो जीन प्रेजेंट होते हैं वो लीनियर ऑर्डर में होते हैं, कुछ इस तरह से। अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे बढ़ते हुए, ये नहीं होगा कि यहाँ पे ए है तो यहाँ पे जाके बी हो, फिर यहाँ पे जाके सी हो, फिर डी आ जाए, फिर एच आ जाए, ऐसा नहीं होगा। एक लीनियर मैनर में जीन की प्रेजेंस होगी कहाँ, क्रोमोसोम पर। सो दिस इज द पोस्टुलेट नंबर 1 ऑफ मॉर्गन क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज, दैट in a chromosome genes are present in linear order or linear manner. What is the second? ठीक है, दूसरा linked gene present or we can say that in same chromosome, linked gene present in same chromosome and inherit और वी कैन राइट इनहेरिटेड टुगेदर, ठीक है। कहने का मतलब अगर कोई हमारा एक ये क्रोमोसोम था बेटा, तो इसमें अगर दो जीन थे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, एक ए था एक बी था, तो एक ही क्रोमोसोम पे रहेंगे। ये नहीं होगा कि ए इस क्रोमोसोम पे है, बी जाके किसी और क्रोमोसोम पे हो जाए। सो ऑलवेज लिंक्ड जीन प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, दैट्स व्हाई दे आल्सो इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट to the offspring as it is. Third, genes tend to inherit in parental combination. ये सबसे बड़ी बात इन्होंने बताई कि जीन है, इनका पूरा प्रयास रहता है कि ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन में ही इनहेरिट करें, ठीक है, इनमें कोई चेंजेस ना आए। यानी जैसे जीन प्रेजेंट थे कहाँ, पेरेंट्स में, वैसे के वैसे वो चले जाएं ऑफस्प्रिंग में। ओके, सो जीन ऑलवेज टेंड टू इनहेरिट इन सेम पोजीशन, और वी कैन से दैट जीन्स टेंड टू इनहेरिट इन पेरेंटल कॉम्बिनेशन, बट वी कैन से दैट ओकेजनली क्रॉसिंग ओवर में takes place. Crossing over means that exchange of the chromatid materials, or we can say that is exchange of the chromosomal portion, ठीक है। यहाँ से लिख सकते हैं genes tend to inherit in parental combination but occasionally crossing over takes place. Crossing over takes place. तो बेटा अभी तक मैंने आपको 3 पॉइंट बताए, उम्मीद है आसानी से समझ गए होंगे। होता क्या है, इन ए क्रोमोसोम जीन्स आर प्रेजेंट इन लीनियर मैनर, लिंक्ड जीन प्रेजेंट इन सेम क्रोमोसोम एंड इनहेरिट टुगेदर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग. अगेन जीन्स टेंड टू इनहेरिट इन पेरेंटल कॉम्बिनेशन बट ओकेजनली क्रॉसिंग ओवर में टेक्स प्लेस. सो लेट्स डिस्कस 2 मोर पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ से देखेंगे बेटा, नेक्स्ट डिस्टेंस बिटवीन linked gene in a chromosome determines the strength of
स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज। यानी कहने का मतलब क्या हुआ बेटा कि जो लिंक्ड जीन के बीच में डिस्टेंस है वो ये डिसाइड करती है कि लिंकेज कितना इफेक्टिव होगा या कितना हाई होगा। कहने का मतलब क्या है, अगर ये एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम था, यहाँ पे एक जीन ए वाला यहाँ पे था, बी वाला यहाँ पे था, एक और क्रोमोसोम था यहाँ पे, एक ए यहाँ पे था, बी यहाँ पे था, तो जहाँ पे डिस्टेंस कम है यहाँ पे लिंकेज ज़्यादा होगा, जहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है यहाँ पे लिंकेज कम होगा। इट मीन्स दैट लिंकेज इज डिपेंडेंट अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स। यानी दो जीन के बीच में जितना कम डिस्टेंस, देयर विल बी मोर एंड मोर लिंकेज। इफ देयर इज मोर एंड मोर डिस्टेंस, देयर विल बी वेरी वेरी लेस लिंकेज। हम एक और देख लेते हैं, क्लोजली लिंक्ड जीन, क्लोजली लिंक्ड जीन शो ग्रेटर लिंकेज, मैं ऊपर बता चुका हूं आपको, ग्रेटर लिंकेज बिकॉज वेरी रेयरली अंडरगो क्रॉसिंग ओवर। यानी जो लिंक्ड जीन होते हैं इनमें बहुत ही कम क्रॉसिंग ओवर होता है, इस वजह से ये क्या होते हैं, क्लोजली लिंक्ड जीन शो ग्रेटर लिंकेज, ये ज़्यादा लिंकेज शो करते हैं बेटा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द पोस्टुलेट ऑफ मॉर्गन, दोज वर गिवन बाय हिम आफ्टर वर्क ऑन फ्रूट फ्लाई। ओके बेटा, अब यहाँ पे कंक्लूजन में आते हैं। सबसे पहले टर्म यूज किया गया किसको, फैक्टर को। द टर्म फैक्टर वॉज यूज्ड बाय मेंडल। ओके, देन आफ्टर हिम जोहानसन कम। कौन आए बेटा, जोहानसन आए। जोहानसन ने क्या टर्म यूज किया, जीन। देन उसके बाद कौन आए, वावेरी एंड सुटॉन। कौन आया, वावेरी एंड सुटॉन। इन्होंने क्या बताया, जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम, जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम। और उसके बाद सबसे बाद में कौन आए, मॉर्गन ने क्या बताया, जीन्स आर लिंक्ड। ठीक है, यानी सबसे पहले टर्म फैक्टर यूज किया मेंडल ने, उसके बाद जोहानसन है, उन्होंने क्या बताया, जीन। उसके बाद वोवेरी और सुटॉन है, उन्होंने बताया कि जीन क्रोमोसोम पर है। फिर मॉर्गन है, मॉर्गन ने कंक्लूजन क्या दिया कि जीन जो कि क्रोमोसोम पे हैं वो लिंक्ड भी हो सकते हैं और नॉन लिंक्ड भी हो सकते हैं। लेट्स अंडरस्टूड द प्रोसेस ऑफ लिंकेज बाय मीन्स ऑफ ए पर्टिकुलर वेब चैट। अब यहाँ से देखिए बेटा, मान के चलते हैं कोई एक क्रोमोसोम था, एक्चुअल में ऐसे होता नहीं है, बट मैं आपको आपके अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, हियर जीन्स वर प्रेजेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। दूसरा एक क्रोमोसोम कुछ इसी तरह का था और यहाँ पे भी जीन प्रेजेंट थे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अगर आप देखें जीन 1 और 2 या 3 एंड 4 या 5 एंड 6, तो इनके बीच में जीन 1 एंड 2 हैव वेरी लेस डिस्टेंस, इनके बीच में बहुत कम डिस्टेंस होती है। इस वजह से क्या होगा, हाई लिंकेज। क्या होगा बेटा, हाई लिंकेज। लेट्स कंसिडर अनदर वन हियर, बिटवीन जीन 1 एंड 9 देयर विल बी वेरी लो लिंकेज। क्यों यहाँ पे लो लिंकेज होगा, बिकॉज डिस्टेंस इज मोर। अब आप समझ गए होंगे कि जितना ज़्यादा नज़दीक जीन होंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, लिंकेज होगा। जितना ज़्यादा दूर कौन होगा, जीन होंगे, उतना ही कम लिंकेज होगा। दूसरा एक और ध्यान देने वाली बात है बेटा, लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का उल्टा होता है कौन, लिंकेज। यानी अगर लिंकेज है
तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा। या हम कह सकते हैं अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हुआ है तो लिंकेज वहाँ पे मौजूद है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द Morgan postulate. Now we will discuss that why Morgan have selected only fruit fly or Drosophila melanogaster for his experiment. जैसा कि हमने देखा था कि मेंडल ने पी प्लांट को क्यों सेलेक्ट किया था, उसी तरह से अब हम यहाँ पे देखेंगे कि मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई को क्यों कंसीडर किया। Why Morgan consider fruit fly? Why Morgan consider fruit fly, or you can also write Drosophila melanogaster. Drosophila melanogaster, और इस Drosophila melanogaster को हम क्या कहते हैं? क्वीन ऑफ जेनेटिक्स। क्या कहा जाता है इसको? क्वीन ऑफ जेनेटिक्स। क्वीन ऑफ Queen of genetics, and as you know that Morgan is considered as fly man. इनको हम क्या कहते हैं? fly man कहते हैं। Why he have selected first 4 pairs of chromosome, 4 pairs of chromosome की मौजूदगी थी। सेकेंड, sex determination similar to human being, sex determination similar to human being, यानी जैसे हम लोगों में होता है बेटा वैसे भी यहाँ पे भी था, यानी XX एंड XY टाइप। कहाँ? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में भी सेक्स डिटर्मिनेशन वैसा ही था जैसे हम लोगों में होता है। थर्ड सबसे बड़ा रीजन क्या था? ब्रीड क्विकली, हम कह सकते हैं विद इन 2 weeks 100 ऑफ स्प्रिंग, यानी बहुत तेजी से इसमें ब्रीडिंग होती है बेटा। 2 हफ्तों के अंदर 100 की संख्या में यहाँ पे फ्रूट फ्राई का फॉर्मेशन हो जाता है। चौथा, कैन ग्रो इन सिंपल सिंथेटिक मीडियम। इनको हम सिंपल सिंथेटिक मीडियम में भी बेटा क्या कर सकते हैं? ग्रो कर सकते हैं। एंड मेल एंड फीमेल्स जो कि मेल और फीमेल फ्रूट फ्लाई होती हैं are easily distinguishable, Okay, then students, now you can see the queen of genetics, fruit fly या Drosophila melanogaster। यहाँ से आप देख सकते हैं, इसी को हम कहते हैं क्या? क्वीन ऑफ जेनेटिक्स। ओके बच्चों, तो अभी तक आपको क्या बताया गया कि मॉर्गन ने क्यों कंसीडर किया फ्रूट फ्लाई को? उसका रीजन क्या था? 4 पेयर्स थे क्रोमोसोम के, यानी 4 लिंकेज ग्रुप यहाँ पे पॉसिबल थे। सेक्स डिटर्मिनेशन जैसा ह्यूमन बीइंग में होता है वैसे भी वहाँ पे था। इसके साथ साथ वो क्विकली ब्रीड कर सकती थी, 2 हफ्ते के अंदर 100 की संख्या में बन सकती थी। उनको हम सिंपल सिंथेटिक मीडियम में ग्रो कर सकते थे, और जो मेल और फीमेल फ्रूट फ्लाई थी उनको हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते थे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लिंकेज। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ लिंकेज। ओके देन स्टूडेंट्स, तो बेटा हमारा अगला टॉपिक क्या है? टाइप ऑफ लिंकेज, यानी लिंकेज का टाइप क्या क्या है। तो मैं आपको बताऊं, देयर आर 2 टाइप्स, कंप्लीट लिंकेज जो कि बहुत रेयरली होता है, एंड सेकेंड वन इज इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज, यानी 2 तरह के लिंकेज हम देखेंगे यहाँ से। सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट वन, दैट इज कंप्लीट लिंकेज। एंड रिमेंबर
ऑल दीज आर द नॉट पार्ट ऑफ योर एनसीईआरटी, बट आपको केवल मैं इंट्रोडक्शन दूंगा इसका। लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज का केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको बताया जाएगा, जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट लिंकेज, बिकॉज दीज आर नॉट पार्ट ऑफ योर एनसीईआरटी एंड ऑल्सो these are the not greater extent of, we can say that, your competitive examination। बहुत ज़्यादा इनसे पूछा नहीं जाता है क्वेश्चंस, तो आपको एक जनरल सा इंट्रोडक्शन देते हैं कि इसके टाइप्स भी हो सकते हैं जो कि कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज के रूप में होता है। यहाँ से क्या होगा बेटा, द जीन्स क्लोजली लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स, क्लोजली लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स show complete linkage, so complete linkage and do not separated separated by crossing over, do not separated by crossing over, यानी जो दो नज़दीक जीन थे क्रोमोसोम पे वो क्या कराते हैं, कंप्लीट लिंकेज। सो द जीन्स क्लोजली लोकेटेड ऑन अ क्रोमोसोम्स सो कंप्लीट लिंकेज एंड डू नॉट सेपरेटेड बाय द क्रॉसिंग ओवर, यानी जो दो जीन थे क्लोजली एक दूसरे के प्रेजेंट थे उनमें क्या हुआ, सेपरेशन नहीं हुआ क्रॉसिंग ओवर की वजह से। और यहाँ से और क्या होगा, एंड transmitted together in the same gamete, transmitted together in the same gamete and same offspring, same gamete and same offspring। यानी होता क्या है बेटा, यहाँ से ध्यान देने वाली बात क्या है, कंप्लीट लिंकेज में जीन्स जो एक दूसरे के क्लोजली रिलेटेड होते हैं वो एक ही गैमीट में जाते हैं और एक ही ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। मैं पहले भी आपको यहाँ से बता चुका हूँ। तो सभी प्यारे बच्चे यहाँ से आप कंसीडर करो, यहाँ पे हम एक क्रॉस करा रहे हैं पैरेंटल कॉम्बिनेशन को। आप यहाँ से देखिए ये क्रॉस रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा कंप्लीट लिंकेज को। यहाँ पे मेल और फीमेल इंडिविजुअल को लिया गया है। जो फीमेल है यहाँ पे उसके पास क्या है बेटा, यहाँ से देखिए रेड आइज़ और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको नॉर्मल विंग्ड हैं, और फिर जो मेल है उसके पास क्या है, पर्पल आइज़ और वेस्टिजियल विंग्स। दोनों के दोनों होमोजाइगस कंडीशन में हैं। इनके बीच में गैमिट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, देख सकते हैं आप। पीबी कैपिटल लेटर्स में लेफ़्ट साइड में और पीबी स्मॉल लेटर्स में आपके राइट साइड में बन रहे हैं। इनके बीच में क्रॉसिंग होगा। फिर क्रॉसिंग के बाद F1 जनरेशन में जितने भी मिलेंगे आपको सब के सब हेट्रोजाइगस मिलेंगे, और हेट्रोजाइगस के साथ साथ बेटा जो आपको कंडीशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, नॉर्मल यानी रेड आइज़ और नॉर्मल विंग वाले। अब इनका फिर हम यहाँ से टेस्ट क्रॉस कराएंगे। टेस्ट क्रॉस कराने के बाद आप देख सकते हैं जो हमको रेशियो मिल रहा है वो मिल रहा है 1:1, जो कि पेरेंटल रेशियो है और उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो बेटा आप फटाफट देख लेते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज, यानी कंप्लीट का उल्टा होता है, यानी जीन distantly located on a chromosome, genes distantly located on a chromosome show incomplete linkage, इनकम्प्लीट लिंकेज, यानी जिनके बीच में ज़्यादा डिस्टेंस होती है बेटा वो इनकम्प्लीट लिंकेज को शो करते हैं। और ध्यान देने वाली बात क्या है, एंड दे टेंड टू सेपरेट और सेपरेटेड बाय क्रॉसिंग ओवर, यानी जो लिंक्ड जीन थे कंप्लीट लिंकेज था वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर से वो सेपरेट नहीं हो रहे थे, यहाँ पे वो सेपरेट हो जा रहे हैं। लेट्स कंसीडर द एग्जांपल इज हियर ऑफ स्वीट पी। यहाँ से देखेंगे डबल डोमिनेंट स्वीट पी प्लांट, डबल डोमिनेंट स्वीट पी प्लांट homozygous for blue flower
एंड लॉन्ग पॉलन ग्रेन, एंड लॉन्ग पॉलन ग्रेन, यानी कैसे आप इसको डिनोट करोगे, ब्लू फ्लावर BB एंड LL इज क्रॉस्ड with double dominant, cross with double dominant homozygous, double dominant homozygous plant for red flower, plant for red flower and red flower and round pollen grain, round pollen grain यानी BBLL, यानी हम इनके बीच में क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा, देन वी गेट, ठीक है। तो F1 जनरेशन प्लांट्स, F1 जनरेशन प्लांट्स वर ब्लू फ्लावर एंड लॉन्ग पॉलन ग्रेन, long pollen grained and heterozygous, यानी हुआ क्या बेटा कि अगर हमने इनके बीच में क्रॉस कराया, किसके किसके बीच में, कैपिटल B स्मॉल b स्मॉल l और कैपिटल B स्मॉल l, तो हमको क्या मिलेगी, यही तो सिचुएशन मिलेगी, कैपिटल B स्मॉल b कैपिटल L स्मॉल l, ये सभी क्या होंगे, हेटेरोजाइगस होंगे। और फ्लावर्स कैसे होंगी, ब्लू फ्लावर्स एंड लॉन्ग पॉलन ग्रेन, कहाँ, F1 जनरेशन में। लेकिन आगे F2 जनरेशन में क्या होगा, ठीक है। अब आगे क्या हुआ, F1 प्लांट वर टेस्ट क्रॉस्ड विथ डबल रिसेसिव पेरेंट, डबल रिसेसिव पेरेंट यानी कौन, BBLL। All dear students, you can see from here incomplete as well as complete linkage यहाँ पे आपको दिखाया गया है। इनकम्प्लीट लिंकेज और कंप्लीट लिंकेज में दोनों में आप डिफरेंस क्या देख सकते हैं। यहाँ पे कंप्लीट लिंकेज आप सबसे पहले कंसीडर करो। यहाँ से देखें आप, कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है, और क्रॉसिंग ओवर ना होने की वजह से जो भी मिल रहे हैं आपको, सभी के सभी पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं। नियरली जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिलता है बेटा, वो आपको मान के चलिए कि 98.7% तक मिल जाता है। लेकिन अगर बात करें हम इनकम्प्लीट लिंकेज की, तो चूंकि यहाँ पे हो जाता है बेटा क्रॉसिंग ओवर, और जब क्रॉसिंग ओवर हो जाता है तो हमको रिकॉम्बिनेंट टाइप का ऑफस्प्रिंग मिलता है बेटा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं रिकॉम्बिनेंट टाइप मिल रहे हैं कहाँ, इनकम्प्लीट लिंकेज में, और पेरेंटल टाइप के मिल रहे हैं कहाँ, कंप्लीट लिंकेज में। एंड प्रोजेनी शो phenotype of 7:1:1:7, यानी 9:3:3:1 की जगह पे क्या आ गया, 7:1:1:7। तो ये कहने का मतलब क्या है, ये एग्जाम्पल है कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज का। ठीक है बेटा, तो ये तो था आपका लिंकेज और उसके कुछ जनरल टर्मिनोलॉजी। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे बेटा, जो आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम बना हुआ है, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, आपको बताऊंगा कि लिंकेज को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं और लिंकेज का इंपॉर्टेंस क्या है।